with you. Let the students come, let them join, and then I will share that information with the entire class. We're just waiting hardly for few more minutes. How many students are there in your class? What is the total strength? 7 to 8. Okay, okay. So this section D is having students from the, I mean, like CS, ME, the different streams. Is it so? Only except CSE. Except CSE. Okay. And there are more than 29 or 30 students around, but only Okay. seven are attending every day. Okay. So only seven are attending the classes regularly. Rest Yes. all are not attending. No, ma'am. Okay. Okay. So hardly we are just waiting for those five students. Let them join, and then I will start the lecture because we Okay. have still 2 minutes more. Good morning, Adarsh. Good morning, ma'am. Good morning, Indresh. So see, in the last lecture, we were discussing about the economy. That what is economy and what do we mean by this term economy? Economy क्या है और economy को हम कैसे समझते हैं? Fine. What I'm doing today, I'm going to show you one video so that you get some clarity. आपको कुछ clarity आ जाए economy के लिए if there is any confusion because I know it very well कि आप लोगों ने ये अप टिल 12th आई एम श्योर ये नहीं पढ़ा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स बिकॉज दीज आर नॉट योर सब्जेक्ट्स तो आपके पास शायद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही रहा है तो यू आर नॉट एट ऑल फैमिलियर विद दैट तो मैं इसके लिए आपको एक आई एम गोइंग टू शो यू वन स्मॉल वीडियो so I'm going to show you one small video so that you can understand the meaning of economy ताकि आप economy का मतलब समझ सकें and what we will do after after presenting that video I will we will discuss together that how many of you have understood the meaning of economy and if there is any confusion then further we will discuss because today what we are going to discuss we are going to discuss what is economy क्या है and what are the different types of economy और economy कितने types की होती है this we are going to discuss so first of all I'm going to present or I'm going to show you one small video right just watch that and then we will discuss about it. Can you all people see this screen? I mean, it's taking time. Is it visible to the entire class? Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay, okay. So I'm starting this video. In this History Illustrated video, we're going to take a quick look at the word economy. I say a quick look because it's a very long and complicated answer, so we're just going to try to simplify it to where we can understand the main idea and a few of the keywords associated with it. So let's go ahead and start out with this one here.
I have drawn a factory here because they are a producer. And this is one of the key words here, producer or production. Somebody that basically makes things. Someone write makes here. Somebody or something that makes things. Now, these people that are making things have to be able to give these things to somebody that wants them. So I'm just going to use people here. They're going to be a consumer, which means they buy things. I'm going to put some money because that's going to go between the two of them. So money would go this way, and the producer would be earning money for the things that they produce, and people are going to buy them. Now, the story of money becomes much more complicated here because we know that the money goes to the factory, then the factory is going to use that money to buy things, to make some more things so they can send it to more people so they can earn more money back to them. And it's going to continue over and over and over. So the story gets very complicated. So I'm going to give you a couple of more keywords just to focus on. Some of them would be goods. Now, the word goods basically means things. These are things that you can actually hold in your hand and buy. Goods. So a producer will make goods, people will consume goods, and the other word that you need to know is services. So services are things that you can purchase as well, or a producer can make, but you can't really hold them in your hand. A service would be something that someone's going to do for you. Now, the word economy can get much more complicated than this, but if you can remember that there is a producer and a consumer, and there's an exchange of money going on, and this happens back and forth with many different people, many different businesses, and many different countries, you will be doing a great job. Now, there's one last thing I need to make sure that you understand about the word economy. I'm going to change my color here so that it stands out a little bit better. There is going to be government involvement, which means the government can step in and make laws that change the way all of this happens. They could say, nope, you can't do things that way. You can't produce that certain material. These people over here cannot have this. They will change the laws on them. Some countries may make it to where there are no laws at all, and you can do anything you want. We would call that a free market or intermarket. See, I show you some small video that what do we mean by economy. Fine. I hope I can expect that few of you might be understanding the meaning of economy. That all class should understand. Fine. इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि आपकी फैक्ट्रीज हैं, आपकी हॉस्पिटल्स हैं, आपकी बैंक्स हैं, तो जो फैक्ट्रीज हैं वहां पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो फैक्ट्रीज दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, दे आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। अब वो चीज जो आप अपने हैंड में होल्ड कर सकते हैं, जो भी चीज विच यू कैन टच, लाइक द प्रोडक्ट विच यू कैन टच, विच यू कैन फील, दैट इज गुड। राइट। जैसे कि आपने अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, तो ऑब्वियसली आप मोबाइल को टच कर सकते हैं, हैंड में होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसी केस में अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना है, यू वांट टू ओपन योर अकाउंट इन दैट बैंक, तो बैंक आपको क्या दे रही है? बैंक आपको सर्विसेज दे रही है। सर्विसेज कैसे दे रही है? द वे द एम्प्लॉय इज इंटरेक्टिंग विद यू, हाउ courteous they were, how friendly they were, वो कितने फ्रेंडली थे आपके साथ, कितना कोऑपरेशन किया उन्होंने आपके साथ। आपने जब अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आप उस बैंक में गए, द वे दे ट्रीटेड यू, किस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया, व्हाट ऑल दिस कम, दिस इज सर्विस। सर्विस क्या है? सर्विस को आप हैंड में होल्ड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट होल्ड इट। फाइन, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड द सर्विसेज। अब होता क्या है किसी भी इकोनॉमी में कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर्स हैं, जैसे बैंक, हॉस्पिटल्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहाँ पे किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो लोग किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और अदर साइड में आपके कंज्यूमर्स होते हैं। अब जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली उसका कंजम्पशन भी होगा, जो चीज़ बनी है उसको कोई ना कोई परचेज भी करेगा।
तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उस प्रोडक्ट को या उस सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, अगर आप कंज्यूमर हैं, आपको अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो करेगी नहीं। वो क्या एक्सपेक्ट करेगी आपसे कि आप इसके रिटर्न में हमें मनी दीजिए। तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई भी मोबाइल था, आप शोरूम पे गए, आपने मोबाइल परचेज किया और आपने रिटर्न में क्या किया, आपने मनी दिया। आपने जो मनी दिया, इसी तरह बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने मनी दिया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास वो मनी आ गया। अब उस मनी से वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, और रॉ मटेरियल परचेज करेगी और ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, ताकि वो लोग जो अभी तक मान लीजिए कि अगर इफ लेट्स सपोज कि अगर जयपुर में ही मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है और दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाते, तो जो पैसा उसे जयपुर के कंज्यूमर से मिल रहा है उससे यूज करके वो अपना बिजनेस दिल्ली में एक्सपेंड करेगी और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगी, ताकि और ज्यादा कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो रहा है। यानी मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी में मैं काम करती हूँ, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, उसे मार्केट में लेके गए, मार्केट में कंज्यूमर्स ने उस प्रोडक्ट को परचेज किया। कैसे परचेज किया, विद द हेल्प ऑफ अ मनी। आपने मनी पे किया। अब उस मनी का फ्लो हुआ, कंज्यूमर्स ने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, लेकिन वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी रहा नहीं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि अब हमें और ज्यादा मोबाइल्स बनाने, और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने, तो हमारा रॉ मटेरियल और चाहिए होगा, हमें और रॉ मटेरियल चाहिए, या जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं हमें उन्हें सैलरी देनी होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ने वापस उस मनी को मार्केट में निकाला। यानी अगर रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को भी मनी पे करना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो भी उनको मनी पे करना पड़ेगा। फिर जो आपके एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं अपनी फैमिली के लिए, लाइक वो अपने चिल्ड्रंस की ट्यूशन फी देंगे, वो अपनी जो मिल्कमैन है उसको पेमेंट करेंगे, अगर वो रेंट पे रहते हैं तो जो ओनर है उसको पेमेंट करेंगे। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इकोनॉमी में आपका मनी का फ्लो हो रहा है। यानी मनी किसी एक के पास नहीं रुक रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी का फ्लो हो रहा है। अगर जब इस चीज में गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट डिसाइडेड द नॉर्म्स, गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है दैट यू हैव द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेकिन आप अपनी मान लीजिए फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप ये ड्रग्स नहीं बना सकते, दिस इज लीगली बैंड इन आवर कंट्री। या फिर कंजम्पशन पे अगर मान लीजिए वो रोक लगा देती है, जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि इट इज वेरी स्ट्रिक्टली मेंशन, जो कफ सिरप होता है वो अगर आपके पास डॉक्टर का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप उसे परचेज नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट सो इजी कि आप किसी मेडिकल शॉप पे गए एंड यू सेड कि मुझे कफ का प्रॉब्लम है एंड आई नीड द कफ सिरप। if he is a genuine person he will not give you, he will ask you for the medical prescription। वो आपसे पूछेगा क्या आपके पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, अगर आपके पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है तो ही मैं आपको वो कफ सिरप दूंगा। सो how he is doing so, why he is doing so, because government have decided this rules and regulations कि अगर if any person comes to you and ask for the cough syrup, you cannot give that person the cough syrup without any medical prescription। मनी तो यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है कि ऑब्वियसली अगर वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आपसे नहीं लेता तो क्या होता, आप जब उससे कफ सिरप परचेज करते तो आपको रिटर्न में पेमेंट तो करना पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, यानी परचेज सेल जो भी चीज आप खरीदेंगे, वेदर यू बाय इट, वेदर यू सेल इट, वेदर यू प्रोड्यूस इट, उस हर चीज में मनी का फ्लो हो रहा है। और इसको लेके जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है then that is what we call economy। I hope it's pretty much clear to the entire class। If anybody is having any doubt please unmute yourself। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, प्लीज रिस्पॉन्ड so that I could know कि you are understanding what I am telling you। इंद्रेश, are you getting me बेटा? इंद्रेश,
Ghanshyam, Adarsh, are you getting me? Yes, ma'am. Okay, okay. अगर किसी को कोई डाउट है, then please you can unmute yourself and you can ask the question. Okay, thank you your response, Indresh. Uh, अब हम आगे चलते हैं. अब now we have to discuss the type of economies. अब हमने ये समझ लिया कि इकोनॉमी क्या है. इकोनॉमी में जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, बाय और सेल हो रहा है और मनी का फ्लो हो रहा है, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमी. अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. कितने टाइप्स की इकोनॉमीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, यानी पूरे वर्ल्ड में एक तरीके की इकोनॉमी नहीं है स्टूडेंट्स. हर इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से डिफरेंट है. यानी कि अगर हम ये कहें कि चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी जैसी है, नहीं, इट इज नॉट सो. So maybe there are number of countries who are having the different type of economies. Basically there are three type of economies. Let me show you that slide. Then I will show you my show you that video also. आपको एक वीडियो भी दिखाना है मुझे on this type of economies. See, there are three main types of economy, right? These are free market economies, command economies, and the mixed economies. So, you have to keep in mind that we have three types of economies. The one is free market economies, the second one is command economies, and the third one is your mixed economies. See, when I'm saying the free market economy simply means that the government doesn't intervene. इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत रेयरली होता है या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता ही नहीं है. यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, यानी जो भी कंपनी है, दे कैन प्रोड्यूस व्हाट दे वांट और उसके बेसिस पे वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा. जैसे इफ यू आर मूविंग टू सिंगापुर, let's suppose in India, if I have to pay only 10 rupees for purchasing the chocolate, एक चॉकलेट को परचेज करने के लिए we are just assuming कि हमें 10 rupees पे करना पड़ता है. And let's suppose we are moving to the Singapore and you find there कि मुझे एक चॉकलेट परचेज करने के लिए वहां पे 50 rupees पे करना पड़ रहा है. Then it simply means that the manufacturer, जो भी चॉकलेट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, because they have the free market economy, गवर्नमेंट का वहां पे इंटरवेंशन नहीं है. गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, इसीलिए जो पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है, जो पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है, they can decide by themselves कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, what price I will charge, और मैं क्या चीज अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करूंगा, मैं सर्विसेज कैसे दूंगा, मैं सर्विसेज कैसे रेंडर करूंगा. दैट इज इन द फ्री मार्केट इकोनॉमीज. कमांड इकोनॉमीज में इसका बिल्कुल अपोजिट है. कमांड इकोनॉमीज के अंदर आपका गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मैक्सिमम है, यानी सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. यहाँ पे सारी चीजें व्हाटएवर इट इज, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ही जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, तो सारी चीजों का डिसीजन सिर्फ गवर्नमेंट लेगी. जैसे चाइना, राइट, प्राइस क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली. कोई भी मैन्युफैक्चरर, बेशक वो ऑर्गेनाइजेशन में ये कहे कि नहीं नहीं, बट बिकॉज मेरा ज्यादा पैसा लगा हुआ है, आई एम देयर टू डिसाइड कि क्या प्रोड्यूस होगा, क्या इस प्रोडक्ट का प्राइस होगा. नो, यू डोंट हैव दैट राइट, बिकॉज वी हैव द कमांड इकोनॉमी. तो गवर्नमेंट जो है वो ओनर है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. देन एट द लास्ट वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है आप जब फ्री मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी दोनों को मिला दें, दोनों का मिक्सचर जो है, दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी. उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं. मतलब कि आप मैन्युफैक्चरर जो भी फैक्ट्रीज हैं उनको पूरी छूट है कि वट एवर दे वांट टू प्रोड्यूस दे कैन प्रोड्यूस. सप्लाई, आप प्राइस जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, बट अगर गवर्नमेंट को ये लगा
एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम अगर गवर्नमेंट को ये लगा कि इनके इतने ज्यादा प्राइस चार्ज करने से बहुत सारे लोग उस कंट्री के ऐसे हैं जो उस बेसिक प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। जैसे अपने यहाँ इंडिया में सडनली कभी कभी आपने देखा है अनियन का जो प्राइस है वो शूट अप हो जाता है, लाइक 100 रुपीज पर केजी, 120 रुपीज पर केजी। उस टाइम पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट परचेज करके स्टोर कर लेती है और कभी कभी आपके लिए नई नई रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है, मना करती है कि ब्लैक होल्डिंग मत कीजिए, काला बाजारी मत कीजिए अनियन की। अगर हमने किसी को देखा कि वो काला बाजारी कर रहा है अनियंस की, देन वी विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। तो क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी आप फ्री तो है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ अ टाइम आपने उसका प्राइस भी डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ये लगा कि लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा उस बेसिक चीज को खरीद नहीं कर पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जो बेसिक नीड्स हैं। अब ये नहीं कि BMW है तो गवर्नमेंट BMW के लिए इंटरवीन करेगी, नहीं, फॉर द बेसिक नीड्स। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमें प्राइस करेक्शन करना चाहिए तो गवर्नमेंट फिर प्राइस करेक्शन करेगी, फिर गवर्नमेंट विल कम इनटू द एक्शन एंड गवर्नमेंट विल डिसाइड कि अब उस चीज का प्राइस क्या होगा। नाउ दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। फाइन, I hope it's clear to the entire class. Any doubt? Any doubt? If anybody No, can ma'am. respond. Okay. Now, Arihant, what I am doing, I'm just showing you a small video for this 3 different type of economies. A small video. Just let me know whether you can see my screen or not. I'm just going to present it.
sorry. Now, as you show, I mean, yes, you have watched in this video that what are the three different types of economies. जैसा हमने इस वीडियो में देखा कि थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज हैं, और फ्री मार्केट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट कभी भी इंटरवीन नहीं करती है, और अगर इंटरवीन करना हुआ तो उन केसेस में इंटरवीन करेगी जब कंट्री की बाउंड्रीज को या कंट्री की सेफ्टी को अगर कोई थ्रेट हो। यानी कि मैन्युफैक्चरर्स दे आर फ्री, दे आर कंप्लीटली फ्री, वो डिसाइड कर सकते हैं व्हाट दे हैव टू प्रोड्यूस, क्या उन्हें प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और उसका क्या प्राइस चार्ज करना है। दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। यानी आपका हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, एट देयर इट मीन्स इट इज एंटायरली द बिजनेस जो है वो प्राइवेट कंपनीज के पास है, एंड द प्राइवेट कंपनीज दे विल डिसाइड कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने वाले। ऑन द कॉन्ट्रेरी अदर साइड में है आपका कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में बिजनेस के जितने भी डिसीजंस होंगे, यानी कि क्या प्रोड्यूस होगा, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बने हैं तो वो इतने बनेंगे, डिफेंस आइटम्स बनने हैं तो वो इतने मैन्युफैक्चरर होंगे, फूड ग्रेन्स को अगर हमें ग्रो करना है तो वो कितना होगा, कौन सी पल्सेस कितनी ग्रो, ऑल द डिसीजंस, ईच एंड एवरी डिसीजंस will be taken by government in the command economy. कमांड इकोनॉमी में हर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। यानी इवन जो आपके यहाँ काम जो उन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनकी वेजेस क्या होंगे, उनको आप क्या कंपनसेशन, क्या सैलरी देने वाले हो, इवन दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। वो वेजेस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिसाइड इट, क्योंकि आप वहाँ पे ओनर ही नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ओनर है वहां पे, इसीलिए गवर्नमेंट विल डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग। तो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि जब गवर्नमेंट ओनर है तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। और ऐसी इकोनॉमी जैसे चाइना, रशिया, वहां पे कमांड इकोनॉमी है। कमांड इकोनॉमी जैसे तो वर्ड कहता है कमांड, यानी किसकी कमांड हो सकती है इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट की कमांड है। गवर्नमेंट हैज टेकन द एंटायर कमांड, पूरा कमांड ले रखा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्या कितना वेजेस देना है आपको, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के पास है। नाउ द थर्ड वन इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड वन जो है वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज नथिंग बट आपने कुछ चीजें फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए और कुछ चीजें आपने कमांड इकोनॉमी के लिए, और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, हाँ आपकी कंट्री के अंदर या ऐसी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट ओनर्स होंगे, यानी प्राइवेट कंपनीज होंगी, वो अपना जो प्रोड्यूस करना है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इनकी इस प्रोडक्शन से, लेट्स सपोज कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज नॉट गुड फॉर द सिटीजन्स ऑफ दैट नेशन, वो उस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट आपके उस प्रोडक्शन फैक्ट्री को बैन कर सकती है, सील कर सकती है, मना कर सकती है कि आप इस चीज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। या फिर कभी कभी कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि इस चीज का प्राइस इतना होगा, उससे ज्यादा आप प्राइस नहीं रख सकते। हमेशा उन चीजों का प्राइस डिसाइड करती है जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे आपका फूड ऑब्वियसली वो आपका बेसिक नीड्स में आता है, तो उनमें करेक्टिव एक्शंस लेती है कि इसका ज्यादा प्राइस हो रहा है, और इसके ज्यादा प्राइस होने से बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो फूड भी नहीं मतलब दे विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द फूड, वो फूड भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, बेसिक जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो ऑब्वियसली हमें पिक्चर में आना पड़ेगा और हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, आप क्या कहते हैं इतना ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, आप राइस का इतना ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, हम डिसाइड करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब आप अपने इंडिया में बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं तो आपके पास द फार्मर्स हैव द चॉइस, या तो वो मार्केट प्राइस पे सेल करें या गवर्नमेंट प्राइस पे। यानी गवर्नमेंट प्राइस वो प्राइस है जिससे कम पर आपको
कोई भी आपकी बनाई हुई चीज को नहीं खरीदेगा, क्योंकि हमारी हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हमारे यहाँ फार्मर्स बहुत ज्यादा है, तो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनसे कोई ये ना कहे कि भाई उनकी जरूरत है, वो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर वो सोलली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इट्स बिकम वेरी असेंशियल कि उनके भी वेलबींग का हमें ध्यान रखना है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एंड फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, हमने एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया, एक मिनिमम प्राइस जिससे कम पर कोई भी फार्मर अपनी चीज को नहीं बेचेगा। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी हर कंट्री जहां गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, दैट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। वो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी गवर्नमेंट दे सेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंटरवीन का मतलब ये नहीं है कि वो हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनली जाके मॉनिटर करेगी, नहीं, इट सिंपली मीन्स कि दे फ्रेम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जो हर मैन्युफैक्चरर को, हर सर्विस प्रोवाइडर को अबाइड करना पड़ता है, उनको उन चीजों को मानना पड़ता है अगर वो उस कंट्री में अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं या अपनी चीजों को सेल आउट करना चाहते हैं। तब आपको वो जो नियम है जो सरकार ने बनाए हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। जैसे अपने यहाँ इंडिया में बहुत पहले केस हुआ था मैगी वाला, और एक और आइटम था जिसमें हमने देखा था लेड का कंटेंट ज्यादा था। तो गवर्नमेंट आस्क्ड देम कि भाई आपके क्योंकि मैगी में ये लेड का कंटेंट ज्यादा है, इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द सिटीजन, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर लेड का कंटेंट ज्यादा होगा किसी भी प्रोडक्ट में तो ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम इट विल लीड टू द कैंसर, उससे कैंसर हो जाएगा। तो ये हमारी कंट्री के सिटीजन्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देन व्हाट दैट प्रोड्यूसर ऑफ द मैगी व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या एक्शन ले लिया, जो भी मार्केट में उन्होंने स्टोर्स को जो सेल आउट कर दिया था मैगी उसको वापस लिया, या फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना कर सकते हैं कि प्लीज डोंट कंज्यूम दैट मैगी विच वी हैव गिवन इन द स्टोर राइट नाउ। जो इस पॉइंट पे हमने मैगी दिया हुआ है उसको आप मत लीजिए। क्यों कर रहे हैं? वाई दे आर डूइंग सो? बिकॉज गवर्नमेंट इज आस्किंग देम, क्योंकि हमने इंस्पेक्शन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर लेड कंटेंट ज्यादा है, और अगर हमारे यहाँ के बच्चे उसको कंज्यूम करेंगे, इफ दे विल इंजॉय दैट मैगी, क्योंकि जनरली आप देखते हैं मैगी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है अपने यहाँ, ऑब्वियसली हॉस्टल्स में रहते हैं तो मैगी, घर पे भी है तो बहुत ज्यादा अगर भूख लग रही है क्योंकि वो इंस्टेंटली प्रिपेयर हो जाता है, तो वी नो दैट कि मैगी का कंजम्पशन ज्यादा है। लेकिन जब हमने उसको गवर्नमेंट ने, जो भी एजेंसी है, उसको जब ये अथॉरिटी दी कि यू शुड मॉनिटर इट, यू शुड चेक, क्रॉस चेक दैट, तो उन्होंने पाया कि लेड का कंटेंट ज्यादा है। लेड का कंटेंट ज्यादा पाने पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ जाती है कि या तो जितना भी आपने अब तक जितना भी माल मार्केट में उतारा है उसको आप वापस लीजिए, या फिर आप लोगों को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कैसे भी आप उनके पास एक कम्युनिकेशन पास ऑन कीजिए कि दिस प्रोडक्ट जो इस डेट तक का है दैट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। और आगे से आप जो भी मैगी मैन्युफैक्चर करेंगे उसमें जो अप टिल दिस कंटेंट, यानी अगर लेट सपोज अर्लियर वो 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम जितना भी उनके मैगी में लेड का कंटेंट था वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसमें, लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट कैन डिसाइड, गवर्नमेंट कह सकती है कि नहीं, अब अगर हमें आपकी मैगी में अगर 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम लेड मिला अगर इंस्पेक्शन करने के बाद, देन हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सील कर देंगे या हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। अब हम डिसाइड करते हैं कि 0.0025 मिलीग्राम सिर्फ इतना परमिसिबल है, उतना ही लेड आपकी प्रोड्यूस करने में या मैन्युफैक्चर करने में मैगी को परमिसिबल है। अगर इससे ज्यादा होता है तो हम आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। नाउ कैसे हुआ, ऑल्दो मैगी किसी प्राइवेट ओनर के पास था, प्राइवेट ओनर उसका प्रोडक्शन कर रहा था, बट देयर वाज अ गवर्नमेंट ने देखा कि मुझे अपने सिटीजन्स का वेलबींग देखना है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि इस रेंज से ज्यादा आपकी मैगी में लेड का कंटेंट नहीं हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द मिक्स्ड इकोनॉमी।
इसी को हम बोल देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। कभी प्राइसेस के टर्म्स में, कभी किसी कंपोजिशन के टर्म्स में कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें किसका कंपोजिशन कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है दैट इज हजार्डियस टू द सिटीजन्स कि वो सिटीजन्स के लिए नुकसान वाली चीज हो। तो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। जैसे मैंने अभी आपको कफ सिरप का एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट हैव सेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि भाई अगर कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी भी मेडिकल शॉप पे जाता है तो अब विदाउट दैट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिकल शॉप वाला आपको कफ सिरप नहीं देगा। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर कंज्यूमिंग दैट कफ सिरप विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर आप कफ सिरप का कंजम्पशन कर रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो इन दिस वे वी आर सेइंग कि दिस इंडिया is having the mixed economy. इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। I hope that is pretty much clear to the entire class. If anybody is having doubt, please let me know. अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। Nobody is having any doubt? Ghanshyam, any No, doubt? Okay. Abhik, any doubt? Pragya? No, ma'am. No, ma'am. Inimul? Inimul? No, ma'am. Any doubt? Okay. Okay, fine. So I hope you understood what do we mean by the different types of economies. Now there's one more thing which I want to tell you, that what is the difference between the want and the need. Want और need में अंतर क्या है? देखिए, the need are the basic necessities. नीड वो चीज है जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, जिसके बिना आप सस्टेन नहीं कर सकते। यानी कि फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ, दीज आर आर बेसिक नीड्स। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। इनके बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी वॉन्ट्स क्या है? वॉन्ट्स आपकी डिजायर है। डिजायर कैसे कि अगर आपकी वॉन्ट है कि फाइन आई वांट टू परचेज अ BMW, मैं BMW परचेज करना चाहता हूँ, तो ये आपकी डिजायर है बेटा। इट्स नॉट योर नीड। ऐसा नहीं है कि BMW के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू सरवाइव, बट दिस इज आवर डिजायर। ये हमारी डिजायर है, ये हमारी इच्छा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉन्ट एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉन्ट एंड द नीड। ये अंतर है वॉन्ट और नीड के बीच में, जो आपको समझ के चलना है और जो आपको याद रखना है। आपको भूलना नहीं है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो मे बी यू माइट गेट कंफ्यूज कि मैम वॉन्ट और नीड में क्या कंफ्यूजन था। तो बस हमें याद नहीं आ रहा। तो इतनी सी बात याद रखें कि जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो आपकी वॉन्ट है, और जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है जिसके बिना आप जी नहीं सकते। अब डोंट टेल मी कि मैम हम तो मोबाइल के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते। सो मोबाइल डजंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ नीड, क्योंकि अभी भी एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंडिया के अंदर ऐसा है जो मोबाइल अफोर्ड भी नहीं कर सकता, या जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। स्टिल दे आर लिविंग, स्टिल दे आर लीडिंग देयर लाइफ। वो जिंदा है अभी भी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। तो वो चीजें जो हमारी लग्जरी में आती हैं, जो फूड, क्लोथ, शेल्टर से बाहर आती हैं, वो सारी चीज हमारी वॉन्ट्स में आ जाती हैं, क्योंकि वो हमारी डिजायर है। अब एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे हो सकता है हमें इसकी जरूरत पड़े। लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन फर्स्ट। Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. fine. Okay. So what I'm telling you, this is supply and demand. आपने एक वीडियो में देखा था कि सप्लाई एंड डिमांड, दीज आर द टू फैक्टर्स। और हम बार बार कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि ये दो चीजें हैं जो आपका किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती हैं। कैसे? मान लीजिए अपनी कंट्री की बात करते हैं, या किसी भी कंट्री को जिसको आप अज्यूम करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेट सपोज कि चॉकलेट का बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में डिमांड है, यानी 10 लाख और 20 लाख पीपल्स दे आर डिमांडिंग फॉर द चॉकलेट ऑन एन एवरेज, हम मान के चलें अजम्पशन। और अगर
सप्लाई यानी मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी फैक्ट्री में सिर्फ 2 लाख चॉकलेट मैन्युफैक्चरर करते हैं, सिर्फ उतना ही तैयार करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिसमैच है, आप देख रहे हैं 8 लाख का मिसमैच है, क्योंकि डिमांड कितने लोगों की है, 10 लाख लोग चाहते हैं चॉकलेट्स को कंज्यूम करना, और हम अपनी फैक्ट्री में सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 लाख ऑफ चॉकलेट, यानी 8 लाख ऑफ चॉकलेट जो है वो अभी भी उसकी कमी है। तो इस केस में हमेशा जब भी मार्केट में चॉकलेट आएगी उसका जो प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, इट विल बी हाई, वो हमेशा ज्यादा होगा। अब इसको अपोजिट में देखिए, मान लीजिए कि आपके यहाँ मिल्क है, आई एम जस्ट कोटिंग अनदर एग्जांपल, अगर मिल्क का डिमांड जो है, हालांकि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, ऐसा हो नहीं सकता, इंस्टेड ऑफ मिल्क लेट सपोज किसी और चीज का ले लेते हैं, लेट सपोज मोबाइल के केस में ले लेते हैं कि अगर मोबाइल की डिमांड अपनी कंट्री में 20 लाख है, यानी 20 लाख पीपल दे आर डिमांडिंग फॉर द परचेज ऑफ अ मोबाइल, और अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो 40 लाख हैं, यानी 40 लाख मोबाइल हर ईयर मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, यानी ये चीज जो है कि एक्सेस में हो रही है, और कितनी एक्सेस में हो रही है, सॉरी 20 लाख, यानी कि 20 लाख जो है वो आप एक्सेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसको, मोबाइल को, यानी मोबाइल को आप 20 लाख ज्यादा प्रोड्यूस करके चल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आपका जब भी प्राइस होगा वो आपका लेस प्राइस होगा, क्योंकि इतनी सी बात है, जो चीज ज्यादा है, जिसका कंजम्पशन कम है, जिसके मार्केट में कंज्यूमर्स कम है, उतनी डिमांड नहीं है, और आप उस चीज को एक्सेस में अपने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी चीज का, आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो दाम है, उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हैं और अगर आपका प्रोडक्शन कम है, अगर वो कंट्री में कम प्रोड्यूस होती है, तो ऑब्वियसली जो उसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी ये सप्लाई और डिमांड, ये दो चीजें ऐसी हैं जो डिसाइड करती हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ये डिसाइड करती हैं कि किसी भी चीज का प्राइस क्या होने वाला है। दीज आर द टू फैक्टर्स, एंड दीज टू फैक्टर्स आर सच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हर इकोनॉमी में ये सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड कर रहे हैं। जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी में था तो हमने कहा सप्लाई और डिमांड डिसाइड कर रहा है कि किसी भी चीज का प्राइस क्या होगा, सही। लेकिन कमांड इकोनॉमी में ये सप्लाई डिमांड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट है वहां पे, और गवर्नमेंट को पता है कि मुझे अपने सिटीजन्स के लिए क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, और उसका कितना प्राइस रखना है। बाकी आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें हमेशा ये सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर ही डिसाइड करेंगे कि प्राइस क्या होगा। बस मिक्स्ड इकोनॉमी में इतना सा अंतर है कि अगर कभी गवर्नमेंट को ये लग गया कि बेसिक नीड जो है उसका प्राइस ज्यादा हो गया है, जानबूझकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जानबूझकर कंपनियां उस चीज का प्रोडक्शन कम कर रही हैं, विलिंगली कम कर रही हैं, ताकि उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाए, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ के आ जाए, क्योंकि हम कम प्रोड्यूस करेंगे और डिमांड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो शूट अप होगा, बढ़ जाएगा। तो उस केस में गवर्नमेंट पिक्चर में आ जाती है, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ठीक है, अब एक तो हम इंपोर्ट भी करेंगे, हम बाहर से मंगवाएंगे भी बाहर की कंट्री से, और दूसरी चीज आप इतना ज्यादा प्राइस हमारी कंट्री में इस चीज का चार्ज नहीं कर सकते हैं। दैट इज लाइक द सप्लाई एंड डिमांड, एंड आई होप इट्स क्लियर टू द एंटायर क्लास। एनी डाउट? Yes, ma'am, it's clear. It's clear. Thank you. Now, one announcement which I want to give you all people. See that today or by tomorrow, what we will be doing, I will be creating that Google Classroom.